اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گراہ میری زبان سے کہ وہ سمجھیں میری بات۔ سوچ رہا ہوں دنیا کیا ہے، دنیا داری کیا ہے، نام و نمود کی تہمت کیا ہے، شہرت ساری کیا ہے۔ یہ بھی اہل عشق ہی پہ کھلتا ہے رفتہ رفتہ، جس کو آسانی کہتے ہیں وہ دشواری کیا ہے۔ پہلی نظر کعبہ سے اب تک ہٹی نہیں ہے میری، اس کے سوا آنکھوں میں میری نور کی دھاری کیا ہے۔ روتی ہوئی آنکھیں اس کو اچھی لگتی ہیں ورنہ روتی ہوئی آنکھیں اس کو اچھی لگتی ہیں ورنہ رونا دھونا کیا ہے میرا، گریا و زاری کیا ہے۔ روح درود کا ورد کرے اور تو زمزم پیتا جا، اس کے بعد میں پوچھوں گا تجھ سے بیماری کیا ہے۔ ایک کتاب، ایک جائے نماز اور ایک تلوار تھی اس میں، جی چاہا دیکھوں دل میں یہ ایک الماری کیا ہے۔ ادھر ادھر کے سارے رستے کھلے ہوئے ہیں مجھ پر، جو تجھ تک لے کر جاتی ہے وہ راہداری کیا ہے۔ اس کی یاد میں رونے سے یہ بھید کھلا ہے مجھ پر، دل رکھنا کس کو کہتے ہیں اور دلداری کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جناب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوست پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ سو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی خیال، اسی تصور اور اسی گمان کے ساتھ بزم سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کی ان آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے۔ اور میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہی احساس بہت کافی ہے۔ ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کو میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو اور ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں، جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ 2:06 اور جی ہاں، ہفتے کا دن اور جمعۃ المبارک کی رات، 28 شوال اور 20 جون 2020۔ 2:06 ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم کہ صبح کے 4 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے۔ آپ جانتے کہ ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور ایک پوری ٹیم کی کوشش کاوش ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن اس اعتبار سے، اس ترتیب سے آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے۔ اور ٹیم میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ صدر فانی صاحبہ جو ہیں وہ محترمہ پروگرام مینیجر ہیں، ٹیم کو ہیڈ کرتی ہیں، پروڈکشن ٹیم کو ان کا ساتھ دیتی ہیں مہک جبین صاحبہ، اور آج کے پروگرام میں مجھے معاملت حاصل رہے گی نایاب اقبال صاحب کی۔ جی ہاں جناب، یہ تو وہ تمام باتیں ہیں جو میرے فرائض میں شامل ہیں، جو مجھے آپ کو بتانا ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مائک کے اس طرف جس شخص کی آپ کو آواز آ رہی ہے، اس کی باتیں، اس کا میوزک، اس کا بیک گراؤنڈ میوزک، اور وہ تمام باتیں جو ہمارے پروگرام میں بزم سخن میں زیر گفتگو، زیر بحث آتی ہیں، جہاں اختلاف تو رہتا ہے، وہ الگ بات۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی بات کرتا ہے اختلاف کرتا ہے، وہ ہم زبان کیسا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جی ہاں، وہ ہم زبان تو ہے، وہ ہم زبان کیسا ہے؟ تو جو بھی ہے، جیسا بھی ہے۔ اور میں آپ کو کمارا وید کا شعر نہیں سنایا کرتا تھا کہ وہ کمارا وید کا ایک بہت خوبصورت شعر تھا کہ ہم کو اچھی لگتی ہیں تم سے تمہاری باتیں، ہم کو اچھی لگتی ہیں تم سے تمہاری باتیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا ایک مصرع تھا کہ خود کلامی بھی عجب لطف ہے لیکن ہمدم، خود کلامی بھی ایک عجب لطف ہے لیکن ہمدم، ہم کو اچھی لگتی ہیں تم سے تمہاری باتیں۔ تو اس کو خود کلامی کہہ لیں، ہم کلامی کہہ لیں، جو بھی ہے، رات کے آخری پہروں میں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ سے وہ باتیں کرنا جو آپ کے دل کو بھاتی ہیں۔ کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے، آپ مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں،
اور مایوسی جو ہے اس سے دور دور تک واسطہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اداسی ایک مثبت اور ایک ہیلدی سائن ہے. یہ بھی بات جو ہے وہ اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اداس رہنا شاید آپ کو اچھا نہ لگتا ہو لیکن مجھے اداس رہنا اچھا لگتا ہے. مجھے وہ جو مناظر ہیں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آتے تو میں اداس ہوتا ہوں. بچوں کو دیکھ کر اداس ہوتا ہوں جن کی کھیلنے کی عمریں ہیں اور وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے لوگ مجھے پریشان رکھتے ہیں. تو اداس ہونا تو بنتا ہے. اور اجمیر صاحب کا شعر بھی آپ کو سناتا چلوں کہ جان ڈھلتا ہے تو مجھے اس کا بھی دکھ فیصل کسی گمگشتہ نشانی کی طرح ہوتا ہے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں اور ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا پہر آئے گا جب میں ساری کی ساری دل کی باتیں آپ سے کر کے چلا جاؤں گا. تسکین دل کی خاطر تم بچھڑتے وقت مسکراتے رہو. وہ جانے والے دور جاتے ہوئے پلٹ پلٹ دل غلطی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے دل. دل غلطی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے دل. دل غلطی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے دل. دل غلطی کر بیٹھا تو بول کفارہ کیا ہوگا. میرے دل کی دل سے توبہ دل سے توبہ میرے دل کی میرے دل کی دل سے توبہ دل سے توبہ میرے دل کی توبہ ہے دل اب پیار دوبارہ نہ ہوگا. بول کفارہ کفارہ بول کفارہ تو بول کفارہ کفارہ بول کفارہ کفارہ بولو یارا او یارا بول کفارہ کیا ہوگا. جگنو کر گئے تیرے ملن کے دیپ جلائے ہیں. ہم نے جگنو جگنو کر کے تیرے ملن کے دیپ جلائے ہیں. اکھیوں میں موتی بھر بھر کے تیرے ہجر میں ہاتھ اٹھائے ہیں. تیرے نام کے ہر وقت تسبیح کو سانسوں کے گلے کا ہار کیا. دنیا بھولی اور صرف تجھے ہی پیار کیا. تم جیت گئے ہم ہارے اور تم جیتے. تم جیت
तुम्हें बेगर्ज होना था, तुम्हें इरादा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हमी पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आँखों ने आँखें पढ़ पढ़ के तुझे विरुद्ध बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कोई याद ही रखते सफर ठहरे, कोई राह गुजर अनजानी हो, जब तक मेरी उम्र जवान रहे और ये तस्वीर पुरानी हो। कोई नाव कहीं मंझधार में डूबे, चांद से उलझे और उधर मौजों की वही हल्का बंदी, दरिया की वही तुगयानी हो। इसी रात और दिन के मेले में, इसी रात और दिन के मेले में तेरा हाथ छुटे मेरे हाथों से, तेरे साथ तेरी तन्हाई हो, मेरे साथ मेरी वीरानी हो। यूं खाना दिल में खुशबू आबाद है और लौ देती है, जूं बाद शुमाल के पहरे में कोई तन्हा रात गिरानी हो। क्या ढूंढते हैं, क्या खो बैठे,
کہ سجلت میں ہیں لوگ یہاں. جی ہاں، سلیم کوثر صاحب، اور آج میرے پاس ان کی کتاب ہے یہ چراغ ہے تو جلا رہے. یہ اسی اجلت کی بات ہے جس اجلت کے بارے میں واصف علی واصف نے لکھا تھا اپنے کسی کتاب کا نام تو مجھے یاد ہے لیکن اس تحریر کا نام یاد نہیں ہے. کتاب کا نام ہے دل دریا سمندر. اس میں اپنی کسی کہانی میں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا اور ایک منبع ہے، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہر انسان اجلت میں ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے کہاں جانا ہے. تو سلیم کوثر نے لکھا کہ کیا ڈھونڈتے ہیں کیا کھو بیٹھے کہ سجلت میں ہیں لوگ جہاں، سر راہ کچھ ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی رسم نبھانی ہو. تو وقت بہت تیز ہو گیا ہے، لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں، میں اور آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب اس کو کیا کہیے، پیچھے رہنے کو اور آگے جانے کو، سوائے اس کی کہ وہ لوگ ترقی کر گئے جو آگے چلے گئے. فی زمانہ بات تو یہی ہے. اور ہم جیسے لوگ ناکام ٹھہرے. چلیں ایسے ہی صحیح. کیا ڈھونڈتے ہیں کیا کھو بیٹھے کہ سجلت میں ہیں لوگ جہاں، سر راہ کچھ ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی رسم نبھانی ہو. ہم کب تک ہاتھوں سے خود اپنے لیے دیوار چنیں. کبھی تجھ سے حکم عدولی ہو، کبھی مجھ سے نافرمانی ہو. کچھ یادیں اور کتابیں ہوں، میرا عشق ہو اور یارانے ہوں. کچھ یادیں اور کتابیں ہوں، میرا عشق ہو اور یارانے ہوں. اسی آب و ہوا کی میں رہنا ہو اور ساری عمر بتانی ہو. ناکام صحیح لیکن ایک فرق ہے، کتابیں تو شاید کم لیکن میرے پاس یادیں بہت ہیں. بچھڑتے وقت مسکراتے رہو، وہ جانے والے دور جاتے ہوئے پلٹ کے نظر ملاتے رہو. دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے دل.
मुझसे तो पूछने आया है वफा के माने ये तेरी सादा दिली मारे न डाले मुझे तो अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझे मैं खुले दर के किसी घर का हूँ सामान प्यारे मैं खुले नीरे गोरे मगबा रे सादा मैं खुले दर के किसी घर का हूँ सामान प्यारे तू दबे कभी आके चुरा ले मुझे अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझे को जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब। हाँ जी, साइम आफ्ताब करके रावलपिंडी पे जी सामा आफ्ताब, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आप आज हमारी बहुत ही अच्छी एक शख्सियत है तारिक गुजरात, तो मैं कहूँगी कि आप उनका जरूर जिक्र करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो पूरे पाकिस्तान की बहुत कमाल शख्सियत थी। हाँ जी, रेडियो पाकिस्तान की फर्स्ट आवाज वो थी, और तौल नसीर जी टीवी पे भी वो एक फर्स्ट आवाज थी। तो बिल्कुल टीवी पे भी थी, और बहुत सारी लोगों को उनकी बातें याद नहीं है, क्योंकि हम जो है वो ये हमारा अलमिया है, जब लोग रहते नहीं है तो हमें उनका प्रोफाइल बाद में हम चेक करते हैं। तारिक अजीज जो हैं वो दो बातें तो आपने बता दी। वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, बड़े हिट हीरो थे, लेकिन फिल्में बहुत कम की उन्होंने। और शायरी तो मैं कहती हूँ उनके पीछे बस थी। शायरी उन्होंने लिखी भी बहुत, और उनका तलफ़ुज़ और उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी थी। हमने बचपन में उनकी वो जो नीलाम घर आता था वो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, और सियासत में मतलब मुझे तो इसलिए भी याद है कि मेरे मामू और वो इकट्ठे एक ही कास्ट फेलो थे ना अच्छा कॉलेज में, माशाल्लाह। तो मतलब इकट्ठे, तो अम्मी हमें अभी उनकी बातें बताती हैं कि वो उन्होंने कैसा दौर देखा और फिर देखे कहाँ पहुंच गए। हाँ, उन्होंने बहुत सेल्फ मेड आदमी थे, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा उन पे। और वो देखें, वो बड़े कामयाब सियासतदान भी थे। वो आपको पता नहीं है, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी रहे मुस्लिम लीग की तरफ से, और फिर उन्होंने बाय चॉइस ये लाहौर से उन्होंने अपनी सीट को रिजाइन किया और दोबारा नीलाम घर में। वो वैसे जब एमएनए थे तब भी वो नीलाम घर करते थे, और जब डॉक्टर लियाकत ने प्रोग्राम इनाम घर शुरू किया तो इनको जब बुलाया वहां पे, तो उन्होंने एडमिट किया डॉक्टर लियाकत, आमिर लियाकत ने, कि मैंने इनको देख के, नीलाम घर को देख के इनाम घर बनाया है। तो ऐसे मतलब मुझे एक तरफ से दुख होता है कि हम इन लोगों की, इनकी जिंदगी में इनको ट्रिब्यूट नहीं दिया जाता। देखे ना, यही प्रॉब्लम है। मुझे आज 15-16 साल हो गया यही कहते हुए कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसका प्रोफाइल हम डिस्कस नहीं करते। मतलब अभी जो लोग जिंदा है हम उनके, अभी हमारे ये आज बता रहा हूँ कि ये सवाबदीद माइक पे बैठने वाले की है कि वो जिसकी मर्जी आवाज को प्ले करे। तो जब लोग जिंदा होते हैं और वो प्रोडक्शन चल रही होती है तो हमने उनके गाने नहीं प्ले किए। जब मदाम नूरजहां ने गाना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब मेरे से गाना गाया नहीं जाता, तो मैंने प्ले करना शुरू कर दिया। मेहदी हसन के साथ भी यही हुआ। जनाब मेहदी हसन की दुनिया दीवानी है,
दुनिया दीवानी थी और अभी भी है। जब वो गा सकते थे तो हम उनकी गजलें नहीं चलाते थे। अब जब वो उन्होंने गाना छोड़ दिया और वो दुनिया में नहीं रहे तो उनकी गजलें हम चलाते हैं। तो जी, ये था कि 101 पे तो जरूर उनके लिए स्पेशल कोई प्रोग्राम होना चाहिए था, तो हाँ जी। नहीं हुआ। इसका है मुझे। होना चाहिए। मैं एडमिट कर रहा हूँ कि हम इस चीज से बहुत पीछे हैं। उसकी एक वजह भी है, जब डीजे अपनी मर्जी से प्रोग्राम करता है। अगर आज मैं तारिक अजीज के नाम पे अपना प्रोग्राम करूंगा तो मेरे पास चंद आप जैसे लोग जो सीनियर भी हैं और बाज़ौक़ और आला ज़र्फ़ वाले लोग हैं वो ही सुनेंगे। उसके अलावा जितनी भी फीडबैक आएगी वो कहेंगे यार ये प्रोग्राम तो आज इन्होंने किया ही नहीं। हाँ जी, जी, जी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये एज अ नेशन जो है वो हम इस बात पे हमारी पर्सनालिटीज में देखिए ना, एक पर्सनालिटी आपकी है, एक पर्सनालिटी मेरी है, एक नेशन की परसेप्शन होती है। वो एज अ नेशन जो परसेप्शन है ना वो बड़ी अजीब व गरीब सी है। बड़ा दिल दुखता है इस बात पे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे अब्बू की कोलेस्ट्रॉल थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये भी कहना कि लिसनर मतलब लोगों में ये डर भी गलत खबरें ना दें, सही खबरें दें। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ। बहुत सारी हाँ, दुनिया ये जो है तो हमारा है कि हम मतलब गलत जो ना ज्यादा फैला रहे होते हैं। तो मेरी यही है कि इस चीज का भी ख्याल रखा जाए। लोग काफी डर रहे हैं इस चीज से, टेस्ट करवाने में भी ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे। मेरी तरफ से अनीला को बहुत सारा सलाम और उनसे कहना है कि अब मेरे फेवरेट आरजे को भी सुना करें। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब सजाद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सोनी लाहौर बटर से कर रहे हैं लाहौर से। जी सर, लाहौर तो अर्ज कर रहे हो तुसी, हुक्म करो। तुसी खैर मौसम कैसा खैरियत? जनाब दा? अल्लाह दा बड़ा करम। तुसी ठीक हो? ਤੁਹਾਡੀ फैमिली रात को ठीक है? लाहौर च भी बारिश हो जाए नजरसानी। नहीं आप तड़का तो इतने लगे लेकिन बहुत घट लगे आपसे इतने भी है। अल्लाह करे कि मौसम चेंज हो जाए। और सर घर बार ठीक है? तुसी सुनाओ, कार फैमिली ठीक है? साढ़े दोस्त ने इस टाइम लक्ष्मी चौक च बैठे हैं, चाय पी रहे हैं रात के पैर च ते शुएब साहब ने अच्छा जनाब मान साहब जनाब का शो सुन रहे हैं। सर मजा आ गया ना। चाह था लाहौर च मजा ही बड़ा आंदा है इस वेले। वो सोनी भट्ट साहब का चाह के बगैर फोल्डर नहीं चलता भाई। अल्लाह रौनका बहाल रखे। तुसी ਤੁਹਾਡੇ दोस्त सारे ਜਿਹੜਾ बड़ी मेहरबानी तुसी सुनदे हो ते दसो की सुनाओगे? 2-17 ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮੇ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁੱਖ ਹੈ। हाँ जी है जी। ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਕਦੇ, हाँ ਕਿਹੜਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਕਦੇ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। क्या बात, क्या बात। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਦੇ, हाँ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਦੇ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। हाँ वाह वाह ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਸਜਾਦ ਖਾਨ ਦਾਦੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟਿਆ ਕਿ ਮਗਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦਿਨੇ ਆ ਜਾਓ। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे कोई पॉलिसी चेंज होए तो दिने भी ਤੇ आए। ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਾਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਮਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 4 ਹੈ। बस है पॉलिसी है ते अल्लाह करे कुछ इंज हो जाए ते सर बड़ी बहुत मेहरबानी सर, बड़ी बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ भी, शुएब साहब ਦਾ भी, बाकी दोस्तों ਦਾ भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान उस जात का। तबीयत से ठीक है जनाब की? अल्लाह का बड़ा करम उस जात का, बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। कौन बात करें? मैं सर नादिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी नादिर साहब मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, क्या लेके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब तारिक अजीज साहब से बात कर रहे थे तो मुझे आज ना आपको एक बात बताऊँ कि मैं एक जगह पर जॉब करता था। सही। तो मेरे कुलीग हुआ करते थे और वो अक्सर मुझे ना तारिक अजीज साहब के बारे में बातें किया करते थे। अच्छा। हम उनको फील्ड पे जब होते थे, दोनों इकट्ठे होते थे, तो हम बड़ा याद किया करते थे, उनके नीलाम घर को याद किया करते थे। और फिर मुझे उनकी एक बात याद है कि मैं बेशक नौजवान हूँ, लेकिन मुझे उनकी आज भी एक बात
हाँ, दुनिया में ये जुमला छा गया। हाँ जी। हाँ। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही हमारी भी बहन बात कर रही थी, साइमा बात कर रही थी जी। कि हम लोगों की ये हम बहुत कमजोर लोग हैं कि जब हमारा कोई हमारे से प्यारा बिछड़ जाता है, हाँ, हम उसे तब याद करते हैं। ऐसे मुझे ना मेरी वालदा साहिबा थी, हयात थी, तो वो अक्सर हम लोग बैठा करते थे। जब मैं अपनी वालदा के पास बैठता था तो वो मुझे सिर्फ तारिक अजीज साहब के बारे में नहीं, वो और भी मुझे पाकिस्तान के जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, जो नामवर लोग थे, गुजर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हाँ। तो मेरी वालदा मुझे बहुत कुछ इन लोगों के बारे में बताया करती थी। ऐसे तो जब भी मैं ना ये आज की नस्ल पर नहीं कहता कि जी हमारी नस्ल आज की जो है ना इस चीज को नहीं देखती, मैं ये कसूरवर ठहराता हूँ आज के वालिदैन को। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि क्योंकि आज के वालिदैन, हमारे जो वालिदैन आज की नस्ल के हैं, उनका हक ये बनता है कि वो हमें बताएं कि यार हमारे पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है। बिल्कुल ऐसी आपने सही पॉइंट आउट किया। जब भी एक चैनल पर एक लड़के को सुन रहा था, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, चल रहा था 23 मार्च के बारे में प्रोग्राम चल रहा था। हाँ। तो उससे सवाल किया गया कि बेटा आप भाई 23 मार्च के बारे में क्या कहोगे? हाँ। उसने कहा था कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में इतना पता ही नहीं है। और वो बता रहा था कि मैं तकरीबन ग्रेजुएट कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे बहुत दुख हुआ कि यार एक ग्रेजुएट कर रहा है लड़का, हाँ। उसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उसे पता क्या है, ऐसे कि तालीम किस काम की है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो सिद्धार्थ भाई आपको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एज अ ब्लाइंड भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जैसे सलीम गिलानी भाई हो गए, सिजाद साहब आप हो गए, और बहुत से आपके आरजेज हैं, उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। नादिर आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको आसानियत दे। और आपकी नजर में सर एक शेर करना चाहूंगा। हुक्म कीजिए प्लीज। शेर कुछ इस तरह से है कि लाल हो गई हैं आंखें उसको याद कर करके ए खुदा, लाल हो गई हैं आंखें उसको याद कर करके ए खुदा, मुझे मेरा यार मिला दे तुझे तेरे यार का वास्ता। वाह वाह, आपका बहुत शुक्रिया नादिर। मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को सलाम हो गया, और मैं सबसे यही दुआ करूंगा कि जो इस वक्त हमारे पे वबा आई है उसके बारे में भी दुआ किया करें, और इसके अलावा जो हमारे सेलिब्रिटीज इस दुनिया फानी से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ किया करें, और जो वो जिंदा हैं, बिल्कुल जो लोग जिंदा हैं उनको भी याद रखा करें। ऐसे ही, ये नहीं कि वही आप वाली बात कि जब हम दुनिया से चले जाए, कोई चला जाए तो हम उससे पीछे बैठ के याद करें, कोई फायदा नहीं है। हाँ। हमें उनकी जिंदगी में भी उनका पता करना चाहिए। हमारे माशाल्लाह ऐसे आर्टिस्ट पड़े हैं हमारे मुल्क में कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, उनकी खिदमत हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा है। ऐसे ही, ऐसे ही। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चीमा स्पेन से बात करूँ, कैसे हैं सर आप? जी चीमा साहब, आप स्पेन प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? फैमिली ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है साहब, सब घर वाले भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब कैसे हैं और क्या लेके आए? पहले तो तारिक अजीज साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत बड़ा इंसान है, अल्लाह उनकी बख्शिश करें। आमीन आमीन। अमजद इस्लाम मंजर साहब की गजल है जनाब। जितने मंजर दिलों में होते हैं, हाँ। जितने मंजर दिलों में होते हैं, सब कहाँ मौसमों में होते हैं। हाँ। वो जो रुकते नहीं है मंजिल पर, वो जो रुकते नहीं है मंजिल पर, जाने किन मंजिलों में होते हैं। हाँ। शर्म आंखों की मार देती है, हाँ। शर्म आंखों की मार देती है, लाख शिकवे दिलों में होते हैं। हाँ। वो बज़ाहत समझ नहीं आते, वो बज़ाहत समझ नहीं आते, जो तल्लक दिलों में होते हैं, जो ताल्लुक दिलों में होते हैं। वाह वाह। एक धोखा सा है निगाहों का, हाँ। एक धोखा सा है निगाहों का, अब हाँ। कब आईनों में होते हैं। वाह। कितनों को नहीं खबर इसकी,
हाँ दुनिया को नहीं खबर इसकी रंग क्या क्या परों में होते हैं, हाँ उनके दम से हैं रौनकें सारी, हाँ उनके दम से हैं रौनकें सारी, ये जो सौदे फरों में होते हाँ ये जो सौदे फरों में होते हैं, अच्छी लगती है जिंदगी कुछ कुछ। हाँ बहुत अच्छा शेर है सर। अच्छी लगती है जिंदगी कुछ कुछ जब कभी दोस्तों में होते हैं, बहुत अच्छा शेर, सच्ची सच्ची बात। अच्छी लगती है जिंदगी कुछ कुछ हाँ। जब कभी दोस्तों में होते हैं। हाँ लोहे किस्मत पे हम वो अल्फाज, लोहे किस्मत पे हैं हम हैं वो अल्फाज जो कहीं हाशियों में होते हैं। वाह वाह, बड़ा गहरा शेर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लोहे किस्मत पे हम हैं वो अल्फाज जो कहीं हाशियों में होते हैं, देख कर जुल्म जो रहें खामोश, हाँ देख कर जुल्म जो रहें खामोश, वो भी तो जालिमों में होते हैं। हाँ फासलों में कमी नहीं होती, फासलों में कमी नहीं होती, शक अगर फैसलों में होते हैं। हाँ मंजिलें मुख्तलिफ नहीं अमजद, मंजिलें मुख्तलिफ नहीं अमजद, फेर बस रास्तों में होते हैं। वाह जितने मंजिल दिलों में होते हैं, सब कहाँ मौसमों में होते हैं, वाह वाह, सब कहाँ मौसमों में होते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपने क्या बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस ज़ात का बड़ा करम। कौन बात करें? मैं लाहौर से महरीन बोल रही हूँ। जी महरीन, लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुई, क्या कहना चाहती हैं? आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। हम एरिया भी मतलब सील नहीं है, शुक्र अल्लाह का। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाहौर में तो सुना है कि कल जो है वो काफ़ी एरिया जो है वो सील हो गए हैं। मैं इचरे में रहती हूँ, शायद आपने नाम सुना हो उसका। जी जी। तो काफी बाजार है वो बड़ा, तो इसलिए लोग काफी रिस्पॉन्सिबल होके वहाँ पे आ रहे हैं आजकल। तो चलें, ये तो अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को ओन करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि इस बात का ख्याल रखें। जी बेशक। चलें, आप बात कर रहे हैं आज आई थिंक सो तारिक अजीज साहब पे, तो खबर सुन के तो मुझे भी काफी शौक लगा, दुख हुआ। जी। बचपन से उनको सुनते थे, ऐसे ही। इवन के उनके होते हुए भी मैं पे कभी कभी या टीवी पे कोई नकल भी उतारता था तो मुझे बुरा लगता था कि ऐसे क्यों ही। उनकी नकल उतारे। ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे। मेरे ख्याल में नकल नहीं ऐसी उतारनी चाहिए। आप उनको कॉपी करें अच्छे अंदाज में, लेकिन वो मजाक में कॉपी की जाती थी, तो काइंडली मैं आर्टिस्ट से और जो भी है वो कॉपी करें, उनको नकल इस सेंस में ना उतारें उनका मजाक उड़ाया जाए। मेरीन, बात एक्चुअली ये है कि नकल हम तब उतारते हैं जब हमें ये पता मतलब जब मुझे ये 100% पता होगा कि मैं इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं जो है वो अपनी पर्सनालिटी के शॉर्ट फॉल में और अपने एहसास कमतरी में आके ना उसकी नकल उतार दूंगा ताकि लोग हंसें और मेरी जगह बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता ना। उनकी नकल वही लोग उतारते थे जिनको पता था कि यार इस बंदे का मुकाबला नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बात थी, तो मैंने कहा आज इस टॉपिक के हवाले से मैं शेयर नहीं, जरूर करूं। आपने बिल्कुल अच्छी बात की और लोगों को पता चल जाएगा कि जब लोग किसी बड़े आदमी की खास तौर पर नकल उतारते हैं मुकाबले के लिए, तो सुनने वाले के जहन में और उसके दिल पे क्या असर पड़ता है। इवन कि वो जुमला तो नहीं बोलते थे जो उनका मेन ज्यादा मशहूर था, जी हाँ। ताहिर रब्बे जलील के बाबत के नाम जी वाला, जी। लेकिन वो जो एक्सेंट ही ले लेते थे ना, वहीं से बनना यार क्यों बोल रहे हो। हाँ तो आप उस लेवल पे जा ही नहीं सकते, तो क्यों उनके वो गॉड देखे ना मैरीन, वो गॉड गिफ्टेड थी। ही गॉट अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकल कॉर्ड्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वोकल कॉर्ड्स हैं वो, तो चाहे मैं आवाज बना के बदल लूं या उसको भारी ले मशीन से कर लूं, मेरे पास पैनल है, लेकिन जिसकी आवाज जो है वो गॉड गिफ्टेड है, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं ना। वो ना सिर्फ आवाज में गॉड गिफ्टेड थे, नॉलेज उनकी बहुत ज्यादा फिर थी। उन्होंने हिंदी में क्या वो बैदबाजी का जब शो हम देखते थे, इवन के वो मैं कहती हूँ कि अब तो एक सवाल पे वो गाड़ी जीत जाते हैं या जरा सा कुछ होता था, तब नीलामगढ़ में तो पूरे एपिसोड चलते थे, 13 सवालों पे गाड़ी मिलेगी। अच्छा, आपने कभी, आपकी एज कम है और आपने कभी अंदाजा लगाया कि वैसा उसके बाद
है। किसी भी चैनल पे वो जो आईक्यू लेवल था वो नीलाम घर देखने वालों का और उनको तैयार करने वालों का आईक्यू लेवल ही चेंज हो जाता था। चेंज होता था, उसमें ऐसे सवाल होते थे जो हमने कभी सोचे नहीं होते थे, ये भी सवाल है। और देखें उस जमाने का जो प्रोग्राम था नीलाम घर, अगर उसको कंपेयर करें बहुत बड़ी प्रोडक्शन से, तो अब ये होता है कि देखने वालों का जो है ना वो टॉक शो भी है, ड्रामा भी है, जो भी चीज नजर आ रही टीवी से उसमें नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है, अजीबोगरीब किस्म की साजिशें होती हैं। मैं आपकी बात काट रही हूँ, टॉक शो से तो मुझे लगता है कि जस्ट टाइम वेस्ट है, उनको पैसे दिए हैं, यहाँ पे बैठो इस टॉपिक में बात करो और चले जाओ, उसका आपको इफेक्ट कोई नहीं मिलेगा किसी पे भी। वो सुनने वाले भी, हम भी सुन रहे हैं, इवन कि मैं खुद सुनती हूँ टॉक शो अब्बू के साथ बैठ के, असर कोई नहीं हम किसी से ले रहे कि भाई हुकूमत के बारे में बोल रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं। टॉक जब नीलाम घर हम देखते थे, हम अच्छा ये इसने आज ये बात की है, इसने ये गेम खेली है, मतलब हम वो बड़ा प्रोडक्टिव था, बहुत प्रोडक्टिव था। सेकंड थॉट मेरी ये आती है कि जो पीटीवी ने प्रोड्यूस किए ना, मतलब इवन कि मैं उस लेवल के वो जो मुन्नू भाई, इशफाक अहमद, अनु कुसिया राइटर्स इतने थे, हमें पता होता था ड्रामा देख रहे हैं, अच्छा ये इसका ये ड्रामा है। वो एक बेग साहब होते थे, जिस वक्त नेम नहीं आ रहा उनका, हम ड्रामा देखते थे, डायरेक्टर का हमें पता होता था। ऐसे ही है। अब हम डायरेक्टर का पता ही नहीं होता, इवन कि तब राइटर का भी पता होता था, कास्ट का भी पता होता था, अब सिर्फ कास्ट का पता है, अल्लाह अल्लाह खैर सला। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ठीक अब है। हमें पता ही नहीं कि इसका पोइट्री किसने की है, इसमें टाइटल सॉन्ग किसका है, मतलब टाइटल सॉन्ग वो एक राहत फतेह अली खान के अलावा और किसी का नहीं समझ आएगी। राइटर का हमें नहीं पता, डायरेक्टर का हमें नहीं पता, जो मशहूर हो गया वो दिन रात में, मतलब वो कहना रातों रात मशहूर हो गया, बस पता चल गया। सही कह रही है, बड़ी प्रोडक्ट। हमें इतनी वो लौट आती थी ना कि वो मतलब पता चलता था कि ये आजकल के ग्रेट लोग चल रहे हैं। सही कह रही, और वो अभी तक ग्रेट है। काश हमें इस चीज का एहसास हो जाए और हम तारिक अजीज जनाब के बाद जो है वो जाग जाए। वो जो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो ओल्ड इज गोल्ड है इस वक्त। इशफाक अहमद साहब जैसा, तारिक अजीज जैसा, बानो कुसिया जैसा राइटर नहीं लेके आ सकते। हाँ जी, ऐसी है, बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। तो टीवी जितना मीडिया आ चुका है, कोई फायदा नहीं। पीटीवी का मुकाबला, पीटीवी ने जो प्रोड्यूस किया ना वो नहीं आ सकता। रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से जो निकले हैं लोग, वो छा गए हैं। हाँ जी, सही कह रही, दुनिया में नाम बनाया। सही कह रही। और मेरी एज है कि मैं मतलब पीटीवी की एक किस्म की पैदावार में से हूँ। नहीं, बड़ा अच्छा लगा मेरीना आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपका बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप तारिक अजीज पे शो कर रहे हैं, और आपने मुसरत नजीर को चलाया, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो मुझे भी मुसरत नजीर का मैंने गलत चला दिया, मुझे तो उनका जो ट्रैक है लट्ठे दी चादर, मुझे वो मैं ढूंढ रहा था, वो तो मेरे से स्किप हो गया और वो ये प्ले हो गया। इनकी एक और है, अब मुझे ये नहीं पता कि उसको गजल कहेंगे या गीत कहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने पिछले दिनों एफएम पे मुसरत नजीर के बारे में भी शो सुना तो अच्छा लगा वो भी। चलें, करेंगे किसी दिन पर्सनालिटीज के ऊपर शुरू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का, और आप अभी भी कॉल कर रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ी सी ब्रेक, एक दो गजलें शामिल करनी है और उसके बाद जो है एक कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद गजलें और नुसरत फतेह अली खान की आवाज को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको जिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करे? महबूब अली बोल रहा हूँ सिद्दी बलूचिस्तान। यार महबूब अली, आप सिबी से बात कर रहे हैं और आपको ये क्या गजब का आपने जो है ना वो आइडिया फ्लोट किया है कि हमें तारिक अजीज जनाब की आवाज सुनाती है। और बस सर क्या करें, हमारे वो तो दिलों में अब अपने लिए इतनी जगह छोड़ गए हैं कि इंतहा नहीं। अच्छा, मैंने जैसे ये कॉल जो है वो मैंने अभी अनाउंस करा था कि मैं कॉल नहीं लूंगा, लेकिन एक कॉल इससे पहले भी आपने ट्राई की है इसी नंबर से, ये जो एंड के ऊपर 5688 आ रहा है, तो मेरा ख्याल आपने वो रिकॉर्डिंग चलाई है और वो जो है ना डिस्टॉर्शन हो गई है। कॉल मैंने काट दी थी और मैंने अभी अनाउंस कर ही रहा था कि दोबारा ब्लिंक होगी आपकी कॉल। मैंने
اتفاق سے یہ آخری کال تھی. اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں 3 بجے کے بعد کال لوں گا, لیکن زبردست آئیڈیا ہے محبوب علی, بہت اچھا آئیڈیا. یہ اللہ کا بڑا کرم, بڑا گریٹ کام کیا. بتائیں. بہت دکھ ہوا, بہت افسوس ہوا جو ہے نا, یہ خبر میں نے 17 تاریخ کو سنی تھی نا. ایسے ہی ہے. تو ہاں, یہ ہمارے دلوں میں ایسی جگہ چھوڑ کے گئے ہیں جس کی کوئی انتہا. وہ ایسے شخصیت کے مالک تھے کہ انتہا نہیں, ان جیسا کوئی نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ محنت کوئی نہیں کر سکتا آنے والی دنیا میں, آنے والے وقت میں. جی, اسی لیے ان کا اپنا مکان تھا, ہم یہی کہہ سکتے ہیں, ان کا ایک اپنا مقام تھا. بالکل. ہم ان کے لیے صرف یہی دعا کرتے ہیں, مگر معافی کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. محبوب علی, آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, اب آپ کال کر سکیں گے, آن ایئر بات ہو سکے گی 3 بجے کے بعد, اور 2:52 ہوئے جاتے ہیں بس میں سکون شوق, اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان. سلیم کوثر نے لکھا کہ اسے کہنا کبھی ملنے چلا آئے, اسے کہنا کبھی ملنے چلا آئے, ہمارے پاؤں میں جو راستہ تھا راستے میں پیڑ تھے, پیڑوں پہ جتنی دائروں کی ٹولیاں ہم سے ملا کرتی تھیں, اب وہ اڑتے اڑتے تھک گئی ہے. وہ گھنی شاخیں جو ہم پر سایہ کرتی تھیں, وہ گھنی شاخیں جو ہم پر سایہ کرتی تھیں, وہ سب مرجھا گئی ہیں. بڑی خوبصورت نظم ہے. کسی دور میں بہت زیادہ میں اس کو شامل کیا کرتا تھا. سندیسا نام ٹائٹل دیا سلیم کوثر صاحب نے اس کو. جی ہاں, پیغام. اور اس سندیسے کا اور اس کا تعلق غالب کے اسی شعر سے ہے کہ وہ کیا شعر میں سنایا کرتا ہوں آپ کو غالب کا, کہ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بھر, کچھ تو پیغام زبانی اور ہے, اور ہو چکی غالب بلائیں سب تمام, پر ایک موت ناگہانی اور ہے. سارا سفر طے بھی ہو جاتا ہے, منزلیں بھی مل جاتی ہیں, خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں, اور آرزویں بھی بھر آ جاتی ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کا کرم ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے, انسان دنیا بھی گھوم لیتا ہے. لیکن کیا کریں, یہ زندگی کا المیہ ہے. جو وقت گزر جاتا ہے انسان کی روح میں اتر جاتا ہے. وہ وقت, وہ گھڑیاں, وہ لمحے واپس نہیں آتے. چاہے آپ نے کتنا کچھ نہ جیا ہو, اپنا وقت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہو, لیکن پھر بھی اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مسلسل خسارہ جو ہو رہا ہے, یہ جو گھڑی پہ نظر پڑتی ہے تو یہ جو سیکنڈ کی سوئی ٹک ٹک کی آواز سے آگے چلی جاتی ہے, یہ شاید ہمیں اسی چیز کا پیغام دیتی ہے کہ جو گھڑیاں, جو ساتھ ہیں, جو لمحے گزر رہے ہیں, یہ واپس نہیں آئیں گے. بس اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کو بھرپور جئیں, بھرپور جئیں, تاکہ آپ کو صرف ایک غم ہو کہ وقت رکتا نہیں ہے اور وقت واپس نہیں آتا. اس غم کو, یہ غم کہیں ڈبل ٹرپل 100 ٹائمز نہ ہو جائے کہ آپ کو یہ تو غم ساروں کے ساتھ ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اور وقت میں گزرنا ہے. یہ غم کافی ہے غم پالنے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ بھی روگ لگ جائے کہ وقت بھی گزر گیا اور آپ نے اس کو بھرپور جیا بھی نہیں. اسے کہنا کبھی ملنے چلا آئے, ہمارے پاؤں میں جو راستہ تھا راستے میں پیڑ تھے, پیڑوں پہ جتنی دائروں کی ٹولیاں ہم سے ملا کرتی تھیں, اب وہ اڑتے اڑتے تھک گئی ہیں. وہ گھنی شاخیں جو ہم پر سایہ کرتی تھیں وہ سب مرجھا گئی ہیں. تم اسے کہنا کبھی ملنے چلا آئے. لبوں پر لفظ ہیں, لفظوں میں کوئی داستاں, قصہ, کہانی جو اسے اکثر سناتے تھے, کسے جا کر سنائیں گے, بتائیں گے
کہ ہم محراب ابرو میں ستارے ٹانکنے والے، دریلب بوسائے اظہار کی دستک سے اکثر کھولنے والے، کبھی بکھری ہوئی زلفوں میں ہم مہتاب کے گجرے بنا کر باندھنے والے، چراغ اور آئینے کے درمیان کب سے سرے ساحل کھڑے موجوں کو تکتے ہیں، اسے کہنا اسے ہم یاد کرتے ہیں، اسے کہنا ہم آ کر خود اسے ملتے، مگر مقتل بدلتے موسموں کے خون میں رنگین ہیں، اور ہم کتار اندر کتار ایسے بہت سے موسموں کے درمیان تنہا کھڑے ہیں۔ جانے کب اپنا بلاوا ہو کہ ہم میں آج بھی کمر کی وارفتگی اور وحشتوں کا رقص جاری ہے۔ وہ بازی جو بساط جاں پہ کھیلی تھی ابھی ہم نے نہ جیتی ہے نہ ہاری ہے، اسے کہنا کبھی ملنے چلا آئے کہ اب کی بار شاید اپنی باری ہے۔ کریے پیار
ਦੇਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਪਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਵੇ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਵੇ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਵੇ ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਹੋ ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਵੇ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਵੇ तख्तियां लिखते पढ़ते जवां हो गए उम्र की बेड़ियां काट दी। तख्तियां लिखते पढ़ते जवां हो गए उम्र की बेड़ियां काट दी। हमने बचपन में अपने कलम क्या तराशे कि खुद उंगलियां काट दी। इन मकीनों में एक आखिरी शक्ल पहचान की रह गई थी मगर इन मकीनों में एक आखिरी शक्ल पहचान की रह गई थी मगर तेज चलती हवा ने घरों में लगी नाम की सुर्खियां काट दी। जिसकी छांव में चौपाल के रंग जमते थे अब वो शजर बिक गया। मैंने आपको कहा था ना कि दुनिया बहुत आगे चली गई है। आप दुनिया को कामयाब कहें, अपने आप को नाकाम कहें, जो भी नाम दे रहे, लेकिन बात यही है क्या वो बात जमाने में है नहीं। जिसकी छांव में चौपाल के रंग जमते थे अब वो शजर बिक गया है। ऐसे ही होता ना, एक आम सी बात है कि पहले पहले लोग बड़े घरों में रहते थे, शायद कीमतें कम होती थी। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, आप कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सिब्बी से कॉल आई। पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है। जब 30-40 साल पहले जमीन सस्ती हुआ करती थी तो लोगों में ये रिवाज था कि घर बड़े रखते थे। फिर आप हार गए और पैसा जीतना शुरू हो गया। शुरू में जो हार होती है वो इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो हार रहा है, और शुरू में जीत रहा होता है। जब पैसा जीतता है तो इंसान समझता है कि मैं खुशहाली की तरफ जा रहा हूं, हालांकि वो असल बदहाली की तरफ जा रहा होता है। शायद आपको भी बात समझ में ना आए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुशाहिदा और तजुर्बा बताता है, और हमने यही सीखा है कि जब पैसा आता है तो इंसान समझता है कि मैं खुशहाल हो रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मेरे पास पैसे आ गए हैं, गाड़ी आ गई है। वक्त कम पड़ जाता है, काम ज्यादा हो जाते हैं, दौलत की रवानी और फरावानी हो जाती है। इंसान समझता है कि मैं आगे से आगे जाता जा रहा हूँ, सीढ़ियां चढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ नहीं रहा होता, वो फिसल रहा होता है, अपने असल से फिसल रहा होता है। अगर वो सीढ़ियां उतरना शुरू हो जाए तो उसे मालूम पड़ जाता है। इसलिए वो समझता है कि मैं सीढ़ियां तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, लेकिन असल में वो फिसल रहा होता है। और वक्त गुजर जाता है,
बात घरों की हो रही थी। पहले जमाने में लोग बड़े घरों में रहते थे और इसको फख्र समझते थे और मोहब्बत से बड़े घरों को ओन करते थे। वक्त गुजरता गया, पैसा जीत गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये घर बेच दे, बड़ा पैसा मिलेगा और तरक्की हो जाएगी। बिकते बिकते घर, वो क्या शेर है और क्या मिसरा है कि ये ना हो कि साथ में परिंदे भी बिक जाएं, तो घरों के साथ साथ शजर भी बिक गए। कीमत लगती है तो फिर हर चीज की लगती है। ऐसा नहीं होता कि कीमती चीज की कीमत लग जाए और बाकी जो कीमती ना हो उनकी कोई कीमत ही ना लगे। जब कीमत लगने में आती है तो सारी चीजों की फिर कीमत लगती है। खास व आम हर चीज की कीमत लग जाती है, दरख्तों की कीमत भी लग जाती है। ऐसे ही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता घर छोटे हो गए और लोग उससे भी छोटे हो गए। सलीम कौसर ने लिखा कि जिसकी छांव में चौपाल के रंग जमते थे, अब वो शजर बिक गया जिस पे डाली थी बच्चों। परिंदों ने पतंगे वही टहनियां काट दी। सर बचाते के इज्जत बचाते के आदाबे हमसायगी थे बहुत। सर बचाते के इज्जत बचाते के आदाबे हमसायगी थी बहुत। हमने बस्ती न छोड़ी मगर अपने हिस्से की सब बेरियां काट दी। आपके गांव गया था तो नहरें, शजर और रास्ते नहीं मिल सके। आपके गांव गया था तो नहरें, शजर और रास्ते नहीं मिल सके। यार लोगों ने सड़कें बनाने की ख्वाहिश में पगडंडियां काट दी। कितनी मुश्किल से दरिया के दोनों किनारे मिलाए गए थे सलीम। कितनी मुश्किल से दरिया के दोनों किनारे मिलाए गए थे सलीम। हम अभी रास्ते ही में थे कि किसी ने उधर रस्सियां काट दी। तो खैर जाने दीजिए। रात बहुत रोए, बहुत आहो फुहा की। दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए, बहुत आहो फुहा की। दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए। इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों। इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों। इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों। कहते हो कभी बात वहाँ जाके यहाँ की। दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए। दर्द न सीखो
नसीबो ऐ दोस्त ऐ दर्द नसीबो गलियों में चलो सैर करें शहर बुता की दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की हम रात बहुत रोए अच्छा हमें बनते हुए मिटते हुए देखो अच्छा हमें बनते हुए मिटते हुए देखो अच्छा हमें बनते हुए मिटते हुए देखो हम मौज गुरीसा ही सही आबे रवा की दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की हम रात बहुत रोए बहुत आहुआ की दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की हम रात बहुत रोए खदंगे चश्म भी है हुस्ने दिल पजीर के साथ खदंगे चश्म भी है हुस्ने दिल पजीर के साथ कई शिकार करेगा इस एक तीर के साथ खुदा करे कि मेरा इश्क मोतबर ठहरे खुदा करे कि मेरा इश्क मोतबर ठहरे मैं रात ख्वाब में रोता रहा हूँ मीर के साथ चलो कि हम भी कोई कुएं बेसतूं काटें रहे न तैशा फरहाद जुए शीर के साथ फिर उसके बाद ये जंजीरें उम्र टूट गई फिर उसके बाद ये जंजीरें उम्र टूट गई जरा सी देर तो जिंदा चला असीर के साथ अजब फकीर था जब वो चला गया तो खुला गया है दिल भी मेरा कासाए फकीर के साथ नहीं है कोई तेरा हमसफर तो क्या गम है गुबारे राह तो होता है राहगीर के साथ और अजब फकीर था जब वो चला गया तो खुला गया है दिल भी मेरा कासाए फकीर के साथ तो जब इंसान चला जाता है तो बाद में ख्याल आता है ये एक शायद फितरती अमल है कि हमें वो अच्छाइयाँ नजर नहीं आती जब इंसान जिंदा सलामत हमारे बीच में होते हैं इसीलिए तो हमें हर हफ्ते हर महीने हर साल ऐसे दुख उठाना पड़ते हैं तारिक नईम ने कहीं लिखा था कि अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा मुझे तो बात ऐसी है कि शहर गुमा में हसरत ताबीर के लिए हर एक को अपना ख्वाब सुनाना पड़ा मुझे खुद ही पलट के मैं कफे साहिल पे आ गया हर चंद रास्ते में जमाना पड़ा मुझे और शेर है कि सौदागरों के शहर में अपने वजूद को सौदागरों के शहर में अपने वजूद को कितने ही जावियों से बचाना पड़ा मुझे शब की ये शर्त थी कि दिया तक न साथ हो लेकिन फिर एक चराग जलाना पड़ा मुझे रास्ते में आ गया था हुजूम परी रुखा आईना जमाल दिखाना पड़ा मुझे तारिक नईम यूं ही संवरने के शौक में खुद को नए सिरे से बनाना पड़ा मुझे
could have never missed.
कायनात एक पहेली का धुंधका बनकर कायनात एक पहेली का धुंधका बनकर मेरे आईना इदराक पे छा जाती है। फैल जाते हैं कुछ इस तरह तस्वुर के खतूत, जिंदगी आंख उठाते हुए घबराती है। इश्क, एहसास जवानी, गमे दुनिया, गमे दी, एक दिल और ये अफकार की घनघोर घटा। सपट टपाता हूँ, लपकता हूँ, ठटक जाता हूँ। चार जानिब से आती है ये सदा, क्या होगा? जो भी होगा मुझे मंजूर है, जी लेने दो। जो भी होगा मुझे मंजूर है, जी लेने दो। बस बसो, आरजुओ, कशमकशो, अरमानो तो मुबारक हो मेरी जीत से तस्नीम, मगर जो मेरे जहन पे बीती है वो तुम क्या जानो। चांद के साथ सितारा तो है लेकिन क्यों है? चांद के साथ सितारा तो है लेकिन क्यों है? तितलियां फूल पे क्यों आती हैं, क्या पाती हैं? फूल के रंग में खुशबू का रचाव क्या है? रूहें कालिब से निकलते ही कहाँ जाती हैं? आसमां हद नजर है तो जमीन क्या शय है? ये भी इजाज नजर है तो खुदा क्या होगा? वो भी तखय्युल की जन्नत है तो हाकिम बदन आकबत क्या है? वहां जलवा नुमा क्या होगा? गहरी कोहरों से है मामूर ख्यालों की खला, धुंधली राहें हैं सिमटती हुई, चकराती हुई। ऐसे मोड़ आते हैं जब रूह लरज उठती है, लड़खड़ाते ही उचट जाती है नींद आती हुई। आंख खुलते ही उमड़ आती है घनघोर घटा। आंख खुलते ही उमड़ आती है घनघोर घटा। इश्क, एहसास, जवानी, गमे दुनिया, गमे दी, यूं बिफर जाते हैं माहौल मुकद्दर के नकीब। जैसे फितरत का खिलौना हूं, इंसान नहीं। जैसे फितरत का खिलौना हूं, इंसान नहीं। दिले वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है। तेरे जाने से मेरी जान पे बन आई है। जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है। ऐसा उजड़ा है उम्मीदों का चमन तेरे बाद। ऐसा उजड़ा है उम्मीदों का चमन तेरे बाद। फूल मुरझाए बहारों पे खिज़ां छाई है। जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है। छा गए चारों तरफ गम
मेरी तकदीर मेरे हाल पे शर्माई है। जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है तेरी याद है तन्हाई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है सब सुनने वाले भी मुल्क में मुल्क से बाहर जितने भी हमारे बहन भाई अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन। खुश रखे। और आज तो तारिक अजीज साहब के बारे में भी हो रही है। अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, जन्नत में जगह अता फरमाए, आसानियां करे। आमीन आमीन। तो नो डाउट बहुत अजीम हस्ती, बड़े बेहतरीन इंसान थे वो, कोई शक नहीं। तो यादें होती हैं कि बस ये बिल्कुल ऐसी है। जाना आना तो एक जिंदगी का हिस्सा है ना दुनिया में। ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस ऐसे ही है। बहरहाल प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और आपकी जो शायरी आप लेके आ रहे हैं बहुत सुपर, जबरदस्त, आपको बहुत जबरदस्त। और सुनने वाले को ढेरों दुआ सलाम है। और आप क्या ले बोल जाऊंगी मैं भी। जी आप क्या लेके आई हैं? हम ये पूछ रहे थे। जी मेरी दीदाए दर को मोहब्बत हो गई तुमसे। हाँ मेरे दीदाए दर को मोहब्बत हो गई तुमसे। भले वो चांदनी शब हो या फसले गुल की रंगीनी। हाँ। मेरे हर एक मंजर को मोहब्बत हो गई तुमसे। वाह। खुदा जाने अब इस शुगल का अंजाम क्या होगा। हाँ। दिले ना शादे मुसर को मोहब्बत हो गई तुमसे। वाह। वो जो एक शख्स सिर्फ अपनी ही जात से प्यार किया करता था, सुनो। हाँ। वो जो एक शख्स अपनी ही जात से प्यार किया करता था, सुनो सुनो, एक ऐसे पत्थर को मोहब्बत हो गई तुमसे। वाह। गर किसी लम्हे तुमको मोहब्बत हो गई मुझसे। हाँ। गर किसी लम्हे तुमको मोहब्बत हो गई मुझसे, समझ लेना मुकद्दर को मोहब्बत हो गई तुमसे। अच्छा है। वाह। अभी तो मैं सिर्फ ये चंद लाइनें पेश करूंगी ठीक कि है। मैं जल्दी में थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी कॉल लगेगी, अच्छा माजरत के साथ। कोई बात। तो अभी मैं चंद लाइनें पेश करूंगी। इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह पूरी ये सुनाऊंगी। अब चले चले। अल्लाह सलामत रखे। दुआएं सबको, अजमत और साइमा और सुनने वाले जितने आते हैं सबको बहुत अल्लाह शुक्रिया। सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
خیال و خواب کی دنیا سے بھاگ آیا ہوں، خیال و خواب کی دنیا سے بھاگ آیا ہوں، جوانیوں کے چمنزار تیاگ آیا ہوں، میں بن کے راگ گیا ہو کے آگ آیا ہوں۔ ضیاء احمد ندیم قاسمی اور ان کی نظم کا عنوان راستے کا موڑ۔ یہ شاید ویسے ہی موڑ ہے جو آج کی بزم سخن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور آپ بات کر رہے تھے۔ انسان بھاگتے بھاگتے بہت آگے چلا جاتا ہے، اسی وہم میں، اسی زوم میں، اسی گمان میں کہ یہ ترقی کے راستے ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، وہی بچپن کے کھیل کی اور ان پرچیوں کی، ان میں لکھے نمبروں کی اور خالی پرچیوں کی۔ ہم دوڑتے رہے کہ پرچیاں اکٹھی ہوں تاکہ وقت پہ واپس پہنچ جائیں۔ وقت پہ واپس پہنچ بھی گئے، قسمت نے بھی ساتھ دیا، راستے میں لڑکھڑائی بھی نہیں، کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا اور وقت پہ واپس آ گئے۔ لیکن عجب ستم یہ ہوا کہ پرچیاں کھلتی چلی گئیں اور ساری کی ساری خالی یا بہت کم نمبروں والی تھی۔ ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اور وقت گزر گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کچھ چیزوں کے لیے سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں پڑتا، ہمیں یہ گمان تک نہیں ہوتا، یہ تصور بھی نہیں، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں رہتا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا عام زندگی میں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے یاد رکھنی ہے، اس کو پلے سے باندھ کے رکھنا ہے اور ساری زندگی اس نصیحت کو، اس راز کی بات کو اپنے دل کے ساتھ دگا کے رکھنا ہے، اور یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ لیکن وقت ایسا پاسا پلٹتا ہے کہ وہی بات بھول جاتا ہے انسان، اور وہ بات یاد بھی آ جاتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد۔ احمد ندیم قاسمی نے راستے کے موڑ میں لکھا کہ خیال و خواب کی دنیا سے بھاگ آیا ہوں، جوانیوں کے چمنزار تیاگ آیا ہوں، میں بن کے راگ گیا ہو کے آگ آیا ہوں۔ انسان یہی سمجھتا ہے، لیکن جاتا راگ بن کے ہے، آتا آگ بن کے ہے۔ میں بن کے راگ گیا ہو کے آگ آیا ہوں، شفق میں ڈوبے ہوئے پروتوں پہ گھوم چکا، ہوا میں کھوئی ہوئی راگنی پہ جھوم چکا، گلوں کے بھیگے ہوئے عارضوں کو چوم چکا، کبھی شباب کی تنہائیوں پہ رویا ہوں، کبھی سلگتے ہوئے بازوؤں پہ سویا ہوں، اب اپنے ذہن کی پرچھائیوں کا جویا ہوں۔ یہ زندگی ہے کہ حب سے دوام ہے ہمدم، قدم قدم پر پرستش کا دام ہے ہمدم، یہ داستان ابھی نا تمام ہے ہمدم۔ جوان ہوں مگر احساس خود شناس نہیں، اداس ہوں مگر اس کی کوئی اساس نہیں، باہما یہ سکون دوام راس نہیں، رواج و رسم میں بڑھتا رہا خیال میرا، دل و دماغ میں گھلتا رہا کمال میرا، حصار جبر میں لٹتا رہا جمال میرا۔ جو کہنا چاہوں تو میری زبان پہ پہرے ہیں، جو کہہ بھی دوں تو میرے سامعین بہرے ہیں، جو کہہ چکوں تو سلاسل ہیں اور کٹہرے ہیں، مقابل ہیں ادھر زور آزمائی کے، ادھر گلے ہیں معیشت کی کا جدائی کے، سمجھ میں آ نہ سکے راز کبریائی کے، وہاں فضاؤں میں شعلوں کے تن رہے ہیں جال، یہاں پڑے ہیں گزرگاہوں پر غریب کے لال، وہ زندگی کے مجاہد یہ زندگی کے وبال، ادھر امنگ کی پہنائی زمانہ ملے، ادھر پکار کے چاول کا ایک دانہ ملے، کسی کو قبر کسی کو شراب خانہ ملے، میں شاہراہوں پہ لاشوں کے ڈھیر دیکھ چکا، میں رقص گاہوں میں لاکھوں کو سیر دیکھ چکا، میں اس تضاد کے سب ہیر پھیر دیکھ چکا، مجھے نشیب و فراز جہاں سے شکوہ ہے، عدم میں بھٹکے ہوئے کارواں سے شکوہ ہے، الہی تجھ سے تیرے لا مکان سے شکوہ ہے، یہ مصلحت میرے ادراک سے نہاں کیوں ہے، تیرا سکوت پر اسرار بے قراں کیوں ہے، نگاہ برق میں میرا ہی آشیاں کیوں ہے، بس اب الٹ کے رہوں گا یہ پردہ ہائے قدیم، کہ عام ہو نہ سکی تیری رحمتوں کی شمیم،
کوئی پکار رہا ہے مجھے ندیم ندیم. میں آرزو کو حقیقت بنا کے دم لوں گا, میں اپنی خاک سے نقد بنا کے دم لوں گا, تیرے جہان کو جنت بنا کے دم لوں گا. مجھے تو دیکھ میرے لشکر و سپاہ نہ دیکھ, میرے چراغ تو گن اپنے مہر و ماہ نہ دیکھ, مجھے بلا تو صحیح اوجے بارگاہ نہ دیکھ. میں خود ہی اپنا مقدر بدلنے نکلا ہوں, شرر ہوں اور جہنم نکلنے نکلا ہوں, مقامروں میں نئی چال چلنے نکلا ہوں. میں آدمی ہوں بہشتوں کے راز جانتا ہوں, میں خاص فرشتوں کے راز جانتا ہوں, میں ان حجاب سرشتوں کے راز جانتا ہوں. ایک آفتاب نوہفتہ شب سیاہ میں ہے, نئی زمین نیا آسمان نگاہ میں ہے, یہ شعبدہ میرے احساس کی پناہ میں ہے. عمل کے دشت میں جب عزم دندنائے گا, افق پہ نجم سحر جب نقاب اٹھائے گا, تو میری شعلہ مزاجی کو چین آئے گا. جب اپنے قصر میں اپنا دیا جلاؤں گا, جب اپنے کھیت کا پھل آپ ہی اٹھاؤں گا, خیال و خواب کی دنیا کو لوٹ جاؤں گا. چانیوں چن نال پہسندے آرے ویوں میں کو ول کرن اشارے وے چن تارے وہ چن تارے وے رات چنے دی چانیوں ڈھولا رات چنے دی چانیوں چن نال پہسندے
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम जनाब। आसिम रजा कर रहा हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप? आसिम रजा, आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप कैसे हैं? फैमिली ठीक है? आप ठीक हैं? बहुत अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक बेहतरीन जनाब। पिछला हफ्ता थोड़ा सा भारी गुजरा, अल्लाह रहम वो यूं कहते हैं ना कि जैसे शहर मदफून पे वक्त गुजरे, बस वो हमारे खानदान में कुछ दूर से कुछ अमवात हो गई। फिर तारिक अजीज साहब का अल्लाह और यकीन करें, और पता नहीं अब तो डर लगना शुरू हो गया कि अगर आप सुबह उठते हैं और आप सोशल मीडिया देखते हैं या व्हाट्सएप देखते हैं तो किसी न किसी का दुआ के लिए या किसी न किसी के जनाजे की खबर आ रही होती है। ऐसे ही है। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन बात हुई है कि एक दुनिया में जो आया है वो मियां साहब का क्या शेर है कि मगर शिकारी करन तैयारी बाग चरेंदे हरना, मगर तैयारी करन शिकारी बाग चरेंदे हरना, जो चढ़िया उस त्याना ओढ़क, जो जम्या उस मरना। ऐसे ही है। वाह वाह। तो बात यह है कि तारिक अजीज साहब के अपने शेर थे। अब बचपन में लोगों को अदाकारी का शौक होता है, हमें बैतबाजी का शौक था और उसकी शौक का जो क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी वो तारिक अजीज साहब का शो था। ऐसे ही है। और शेर व शायरी से लगाव उस वक्त हो गया जब हम अभी स्कूल में थे। तो ये माहौल की बात है कि आपको जब शाम को एक प्रोग्राम देखने को मिलता था और आप जनरल नॉलेज और ये शेर व शायरी बैतबाजी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। खैर अब चीजें और की और हो गई हैं। ऐसे तो तारिक अजीज साहब का एक शेर था कि हम वो स्याह बख्त हैं तारिक के शहर में, हम वो स्याह बख्त हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। वाह। अब ये तारिक अजीज साहब जो थे ये साहिब दीवान भी थे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। सही। हाँ, अभी आपके कोई मोहतरमा बात कर रही थी कि रेडियो की पहली आवाज नहीं, रेडियो की वो पहली आवाज नहीं थी, वो टीवी की पहली आवाज थे। जी हाँ, वो 1964 में रेडियो तो ऑल इंडिया रेडियो से जब पाकिस्तान बना था तो एक ही रात में 2 अनाउंसमेंट करने वाले एक ही साहब थे। और बात थी। लेकिन पीटीवी की पहली आवाज। हाँ, तो दूसरा सर हमारा कौमी अलमिया है कि चले जाने वालों को उसके बाद याद करते हैं। ऐसे ही। तो बाकी आपकी खास कलाम मेरे पास नहीं, तो मैंने सिर्फ उनकी याद में हाजिरी देने के लिए नहीं, यही बड़ी बात है। यही बड़ी बात है कि आप और हमारी दुआ है कि सर अभी भी अच्छा, ये लोग कहते हैं ना कि अब जमाना बदल गया, मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि उस ज़ौक़ के उस शौक के मौजूद हैं, लेकिन अब शायद मार्केट बदल गई है, अब बिकता नहीं है वो सामान, बिकता नहीं है, कमर्शियल नहीं है ना, या वो चीज कमर्शियलिज्म। अभी एक इच्छा से जो हमारी मोहतरमा आई थी वो कह रही थी कि मीडिया, अब आप यकीन करें जब हम आज से 10 साल पहले हमारी जब ये डिबेट्स होती थी ना, तो इस ट्रेंड पे क्योंकि हम इकोनॉमी और ये मीडिया और ये बिजनेस के स्टूडेंट थे, तो हम लोगों को पहले बता रहे थे, हालांकि हम कोई गैप का इल्म तो जानते नहीं थे, लेकिन जो ट्रेंड नजर आ रहा था ना सर कि एक वक्त आएगा कि आप क्वालिटी पे इतना कम्प्रोमाइज कर लेंगे कि इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कि जब आपने अंधाधुंध हर अखबार को, हर रेडियो को आपने टेलीविजन के स्टेशन के वो लाइसेंस देना शुरू कर दिए, तो आज आपके सामने है कि इतना एयर टाइम है कि आपके हिस्से में जो पर कैपिटल टाइम है ना जो आता है वो दुनिया में सबसे शायद ज्यादा होगा। 22 करोड़ की आबादी के लिए 150 टेलीविजन और उनमें 24 घंटे मल्टीप्लाई करें और वो एक ही प्रोग्राम को 4-4 दफा चला के और फजूल किस्म एयर टाइम फिर जो करना उन्होंने, उनके पास इतना मवाद नहीं है तैयार हुआ कि उसे वो चला सकें, वो फिर इधर की उधर की क्वालिटी पे सारा कंप्रोमाइज है, आप बेहतर जानते हैं। आज मैं आपसे एक दिल की बात करता हूँ, मैं इतने साल हो गए बात करते हुए, आज से 10 साल पहले 11 साल पहले डॉक्टर सार अहमद का इंतकाल हुआ, आपको शायद याद हो 2010। जी हाँ। अब ये चीजें नोट करने वाली हैं, मैं एक बात करूंगा उस पर याद जाता हूँ कि 2010 की अखबार थी, उस पर खबर आई
اور آپ کو پتہ ہے نا, آپ تو خبریں پڑھتے ہیں کہ اخبار کی جو فارمیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا پہلے پیج پہ اہم خبریں ہوتی ہیں, پھر اس کی دوسری سائڈ پہ غیر اہم ہوتی ہیں, ایسے نا, مطلب اس کی ترتیب آپ تو جانتے ہیں. بالکل 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 ایسے ہی ہے نا سر, کہ اس کی سرخی ہے, اس کے نیچے پھر دوسری اہم خبر, اوپر والی سرکاری خبر, اور کر کے ہر کالم کا ایک معیار ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا آنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں نے دیکھا کہ انہی وقتوں میں, آپ چیک کر لیں ڈیٹس, میرا ریکارڈ بالکل, میری یادداشت بڑی اچھی ہے اس وجہ سے, تو انہی دنوں میں نا شعیب اور ثانیہ کی شادی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے سر, اور وہ روانگی ان کی تھی انڈیا سے پتہ نہیں کہاں سے, اور وہ پاکستان آ رہے تھے. میں نے نا اخبار کے ایک صفحے پہ 2 خبریں اکٹھی پڑھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈاکٹر سار احمد کی جو خبر ہے وہ اہم ہوتی, وہ اس خانے میں تھی جہاں پر ان کا معیار نہیں تھا, اور اس خانے میں وہ خبر تھی جہاں پہ یہ لکھا تھا کہ شعیب اور ثانیہ شادی کے بعد وطن واپس پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اچھا, اس ٹرینڈ کو دیکھ کے آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کیا ہوگا؟ 10 سال گزرے ہیں, 10 سال بعد آج حالت یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں ٹک ٹاکرز کو بلایا گیا کہ آپ ایسا کریں, آپ اویئرنیس دیں اس کے بارے میں, کورونا وائرس کے بارے میں. دیکھ لیں یہ مقام پہ ہم آ چکے ہیں. یہ معیار رہ گیا نا, یہ معیار رہ گیا. تو جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, جن کو نہ کچھ اداکاری کا پتہ, نہ کسی کو تلفظ کا احساس, نہ کوئی کتاب پڑھی, نہ کوئی شعور, نہ کوئی عقل سے پیدل لوگ, پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں کرنے والے. میں معلوم چاہتا ہوں کہ فین سن رہے ہیں, لیکن یہ معیار ہے. آپ نے کیا کس طرح لگا دیا قوم کو, اور کس طرح چل پڑے آپ. اور اقبال, اب دیکھیں نا, اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, اقبال کا ایک بھی شعر وہاں پہ موجود نہیں ہے, اور سارے پتہ نہیں کسی اقبال میں اس طریقے کوئی شعر ہیں. بالکل صحیح کہ اس کا نہ کوئی وزن, نہ کوئی اس کی, یہ قومی شاعر کا حال کیا ہم نے. بالکل ایسے. اور ہم طارق عزیز صاحب کو مطلب بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں. بالکل ایسے. سر بس یہ سچی باتیں ہیں عاصم, یہ سچی باتیں ہیں جس کے بارے میں جو ہے نا وہ لوگ سننا, میں اور آپ اگر باتیں کرنے لگے تو لوگ بور ہو جائیں گے, حالانکہ یہ سچی بات بور ہو جائیں گے. ہاں یار, یہ کیا انٹرسٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں, آپ اب سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ ایسا معیار بن گئے, آپ کوئی بڑے کام کی بات کریں گے نا تو کوئی آپ کو سہے گا نہیں. اگر آپ کوئی ایک بہودہ سی بات کریں گے کسی کے خلاف, یا کوئی مطلب, تو یہ اس پہ آپ کے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے, اس پہ لائکس آنا شروع ہو جائیں گے. تو سارا کے سارا دھیان جو ہے نا وہ اب لائکس اور کمنٹس پہ چلا گیا, جو کہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے دانشوروں کی جو ہوتی نا لیفٹ اور رائٹ کی ڈسٹریبیوشن, وہ بھی ختم کر دی انہوں نے آ کے. بالکل. اب وہ لیفٹ والے جو تھے وہ رائٹ کے بارے میں بول رہے ہیں, رائٹ والے لیفٹ کے بارے میں بول رہے ہیں, پرو پاکستانی پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں, اینٹی پاکستان پاکستان. کیوں؟ صرف لائکس کے بعد, لائکس جو زیادہ دکھ رہا ہے وہ سننا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو دانشور ہوتا ہے, جو شاعر ہوتا ہے, وہ عام ٹرینڈ کو تو فالو نہیں کرتا. وہ تو ہٹ کے بات کرتا ہے, وہ تو ہمیشہ ہٹ کے بات کرتا ہے. مطلب تاریخ گواہ ہے سر. اقبال ہوں, مطلب اس سے پہلے پنجابی کے بڑے بڑے شاعر, شاہ حسین سے لے کے بابا بلے شاہ اور بابا فرید, اتنے بڑے لوگوں نے اپنے زمانے سے ہٹ کے بات کی ہے. بالکل ایسے. بالکل. اور ہمارے شاعر, ہمارے دانشور زمانے کے ساتھ والی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ جسٹ فار سیک آف سبسکرپشن. یوٹیوب پہ چینل بن گیا میرا, سلام بن گیا, چند ڈالر آنا شروع ہو گئے. یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ایسے ہی ہے, ایسے ہی. بات I'm sorry, میں آج تھوڑا سا اس حوالے سے. سر بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن عاصم بڑی اچھی کا اور باتیں ہوتی ہیں, لیکن اب ٹائم جو ہے وہ سائن آؤٹ کا ہے. تھینک یو. ہاں, اس لیے عاصم آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, اور اس کے ساتھ ہی آج کی بزم سخن کے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے. میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر زندگی نے وفا کی اور میرے رب نے مجھے اختیار دیا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور بات ہوگی. اللہ حافظ.